अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट किया। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा नया यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंट्रोडक्शन। One of the key areas of mathematical thinking is deductive reasoning. In order to understand deduction in mathematics, let us consider following three statements. Statement first, all birds fly. Second statement, cat does not fly. Third, cat is not a bird. From first two statements, that are all birds fly, cat does not fly, from these two statements we can deduce that cat is not a bird, because cat does not fly and all birds fly, that means cat is not a bird. Let's consider other three mathematical statements. First one is 8 is divisible by 2. Second one is any number divisible by 2 is an even number. See, from these two statements, 8 is divisible by 2 and any number which is divisible by 2 is an even number, implies 8 is a divisible 8 is an even number. That means from the very first two statements we can deduce that 8 is an even number. From the above examples it is clear that in order to prove a given statement, often called conjecture or thought in mathematics, we use valid deductive steps to derive the proof, which may or may not be established. Mathematical induction. Now, in contrast to deduction, we have an alternative method called inductive reasoning, or simply mathematical induction. In this case, a conjecture is solved by observing and analyzing each and every case. It is frequently used in mathematics, where data is collected and analysis is done for every component of the data. Thus, unlike deduction, mathematical induction means application of particular cases to develop a generalization. Principle of mathematical statement. ये क्या है? In algebra or other discipline of mathematics, certain results or statements are formulated in terms of positive integer n. Specific principles are used to solve those statements and are called principle of mathematical induction. How it works? Principle of mathematical induction से हम रिजल्ट्स को, स्टेटमेंट्स को कैसे प्रूव करते हैं? Suppose there is a given statement and we denote it by p of n involving the natural number n such that, now we have a given statement p of n such that the statement is true for n equal to 1, that is p of 1 is true, and if the statement is true for n equal to k, where k is some positive integer, then the statement is also true for n equal to k plus 1, that is truth for p of k implies the truth of p of k plus 1, that p of n is true for all natural numbers. ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस करने हैं, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है। ठीक, अभी मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? इसमें 3 स्टेप्स हैं। वे फर्स्ट स्टेप इज़ we will prove the statement is true for the small values of n, that is for n equal to 1 or n 2 3 4 so on. ठीक, the first step is that we will prove the statement is true for small values of n, particularly for n equal to 1. ठीक, नंबर सेकंड जो है, after that we will assume that the result holds good for n equal to k for some positive integer k. ठीक, we will assume that result is hold, that means result is true. We assume that result is true for n equal to k. After that, in third step, we prove
the result we prove the statement for n equal to k plus 1. First one, prove for small values of n, that is n equal to 1. Second, assume for n equal to k, and then prove for n equal to k plus 1. Now if p of k implies p of k plus 1, if truth of p of k implies truth of p of k plus 1, that means when we assume for n equal to k and then prove for n equal to k plus 1, then p of n is true for all natural numbers. Then we generalize it, then we generalize that p of n is true for all natural numbers. ठीक है, सिंपल 3 स्टेप्स आप याद रखेंगे. पहले में हम फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन हम प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम एज्यूम करेंगे फॉर एन इक्वल टू के. तीसरे स्टेप में हम प्रूव करेंगे फॉर के एन इक्वल टू के प्लस 1. if it holds good, if the statement is true for n equal to k plus 1, then by principle of mathematical induction we generalize that p of n is true for all natural numbers. ठीक, एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक, स्टेटमेंट हमें गिवन है, इस स्टेटमेंट हमें ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है. दिस होल्ड इज गुड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब हमें पता है पीएमआई में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है कि हमें 3 स्टेप्स करने हैं. पहले हम प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल टू 1, देन एज्यूम फॉर एन इक्वल टू के, देन प्रूव फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1. इफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 आल्सो, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन. Now our statement is 1 plus 3 square plus so on plus 3 raised power n minus 1. That means it is of the form 1 then 3 plus 3 then plus 3 square then plus 3 cube then plus 3 raised power 4 and so on up to जो हमारी nth term होगी वो होगी 3 raised power n minus 1. क्योंकि फर्स्ट सेकेंड टर्म में 3 का पावर 1 है, थर्ड टर्म में 3 का पावर 2 है, फोर्थ में 3 है पावर, फिफ्थ में 4 होगा. इसी तरह से nth टर्म में n माइनस 1 है. ठीक, ये हमें किसके बराबर दिखाना है 3 रेज़्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये हमें प्रूव करना है, ये बराबर है 3 रेज़्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब हम इसका आंसर देखते हैं. लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन. फर्स्टली हम इस स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे पी ऑफ एन से, तो उसका मतलब हमारा जो पी ऑफ एन है वो बराबर है 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 रेज़्ड पावर n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर n माइनस 1 बाई 2. ठीक, नाउ फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव पी ऑफ 1. when n equal to 1 p of n बनेगा हमें p of 1 which is equal to 3 raised power 1 minus 1 by 2. ठीक, that is equal to 3 minus 1 by 2, that is equal to 2 by 2 which is equal to 1. That means when n equal to 1, that means we have only one term, that is here 1. If n equal to 2, we have two terms, that is 1 plus 3. And when n equal to 3, we have three terms, 1 plus 3 square and so on. For n equal to 1, we have only one term, that means p of n जो है वो p of 1 बनेगा, वो हमें बराबर होगा 1 के बराबर, और वही हमें आएगा 3 raised power 1 minus 1 by 2b. That means result is true for n equal to 1. ठीक, now second is we will assume for n equal to k. Let p of k be true for some positive integer k. ठीक, now we will assume that p of k is true for some n equal to k. When p of k is true for n equal to k, that means our statement the result holds good for n equal to k, and we get that is 1 plus we have k terms, that is 1 plus 3 square plus 3 cube plus so on up 3 raised power k minus 1. Total number of terms is k, then last term, the power of last term must be k minus 1, which is equal to 3 raised power k minus 1 by 2 by assumption. Now our third step is we shall now prove for p n equal to k plus 1. That means we will prove now p of k plus 1 is also true. Now when n equal to k plus 1, that means we have k plus 1 terms. ठीक, those are 1 plus 3 square plus so on plus last term जो kth term होगी वो होगी 3 raised power k minus 1,
और जो k प्लस वन टर्म होगी वो होगी 3 रेज पावर k प्लस वन माइनस वन, ठीक, विच इज इक्वल टू 1 प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 रेज पावर k माइनस वन, फर्स्ट k टर्म्स, ठीक, प्लस लास्ट टर्म आएगी 3 रेज पावर k प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो वहाँ बचा 3 रेज पावर k, ठीक है, विच इज इक्वल टू नाउ अब जो पहली के टर्म्स है इनका सम हमें पता ही है बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय एजम्पशन स्टेप विच दिस इज इक्वल टू 3 रेज पावर k माइनस वन बाई टू, ठीक, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिस इज इक्वल टू 3 रेज पावर k माइनस वन बाई टू फॉर फर्स्ट k टर्म्स प्लस लास्ट टर्म k प्लस वन टर्म दैट इज 3 रेज पावर k, ठीक है, this is equal to now cross multiply we get 3 raised power k minus 1 plus 2 into 3 raised power k whole divided by 2, ठीक, अब 3 raised power k दो टर्म्स में है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है, इनमें से एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 2 बचेगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 होल इंटू 3 रेज पावर k कॉमन निकाला और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3 दैट इज 3 इंटू 3 रेज पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, दिस इज 3 इंटू 3 रेज पावर k, 3 का पावर 1 है और 3 का पावर k है तो सम होगा k प्लस 1 आएगा, तो हमें मिलेगा 3 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट आल्सो होल्ड्स गुड, result is also true for n equal to k plus 1, that means p of k plus 1 is true whenever p of k is true, and as by principle of mathematical induction this statement is true for all natural numbers, this statement is true for all natural numbers, ठीक है, और इस तरह से हमने जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने प्रूव किया बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड सिमिलर क्वेश्चंस पूरे एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, और एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन में इस टाइम आपको समझा दूंगा, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, फिर से हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है इस स्टेटमेंट इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक, जो हमारी स्टेटमेंट है वो है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है ना, this is the sum of the product of first three consecutive natural numbers, ठीक है, that is 1 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट टर्म अगर दो टर्म लेंगे हम n 2 के बराबर लेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, जब n टर्म्स हैं तो nth टर्म हमारी है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यह हमें दिखाना है किसके बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे, वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉर n इक्वल टू 1, firstly we will name this very statement as p of n, so our p of n is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus n into n plus 1 into n plus 2, ये हमें बराबर दिखाना है n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4, अब यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू, फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव p of 1 विच इज इक्वल टू एक ही टर्म है तो क्या आएगी 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, यही एक टर्म आएगी, और ये किसके बराबर है 1 2 2 3 6, ठीक, 6 के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, क्यों, ये हमें मिला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 4 4 कैंसिल वापस 6 ही आएगा, ठीक है ना, तो उसका मतलब हुआ फॉर n इक्वल टू 1 रिजल्ट इज ट्रू, ठीक, आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, now second step assume for n equal to k, now that means when we assume for n equal to k that means p of k is true, now p of k is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on, n के बदले k है तो आएगा लास्ट टर्म k into k plus 1 into k plus 2,
और हमने एज्यूम किया ये ट्रू है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, नाउ दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। नाउ लास्ट स्टेप क्या है, we will now prove for n equal to k plus 1, that means our p of k plus 1 is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on। k plus 1 टर्म्स होंगे, तो k plus 1 टर्म्स में पहले k टर्म्स होंगे और एक एडिशनल टर्म होगी। ठीक, तो पहले k टर्म्स होंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और प्लस। ठीक, ये पहले k टर्म्स होंगे, तो नेक्स्ट टर्म होगी k के बदले k प्लस 1 या n के बदले k प्लस 1 इंटू n प्लस 1 दैट इज k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक, और प्लस होगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ठीक, ये जो फर्स्ट के टर्म्स हैं इनका सम हमने ऑलरेडी बाय एजम्पशन स्टेप जो है वहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिला है k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके बाद हम वही इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस लास्ट टर्म जो k प्लस 1 टर्म है वो दैट इज k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए इन दो टर्म्स में k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन है तो बाहर निकालेंगे। ठीक, तो हमें ये मिलेगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, तो अंदर बचेगा क्या यहाँ से, ठीक है ना, k बाई 4 प्लस यहाँ से 1। ठीक, ये हमें मिला k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 4 आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, इसी तरह k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। ये आया किस फॉर्म में, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 डिवाइड बाई 4। दैट मीन्स p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, एंड हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ and this result is true for all the values of n। ठीक, सिमिलरली आपके एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चंस हैं इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। आप ट्राई करना है, जितने सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको और सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आप याद रखिएगा हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब भी हमें यूज़ करना होगा हमें 3 स्टेप्स याद रखने होंगे। फर्स्ट वी विल प्रूव फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n, देन एज्यूम फॉर n इक्वल टू k, एंड देन प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इफ रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन by principle of mathematical induction result is true for all the values of n। Thank you.